नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। अपना उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नमो ऐप के माध्यम से बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत की और उनके साथ लोकसभा चुनाव के लिए बूथ स्तर पर फील्ड वर्क के उपयोगों पर चर्चा की। वैसे तो जब भी मैं तमिलनाडु आता हूं तो अपनी बात वणक्कम से ही शुरू करता हूं, लेकिन आज का वणक्कम मेरे लिए बहुत स्पेशल है, क्योंकि एक कार्यकर्ता दूसरे कार्यकर्ता के साथ वणक्कम से अभिवादन करता है तो एक कार्यकर्ता का अपनापन है, उसकी एक बहुत बड़ी ताकत होती है। अभी बड़ा क्यों न हो जाए, जब वो स्कूल के अपने फ्रेंड से मिलता है और भले 25 साल 30 साल के बाद मिलता हो तो कोई छोटा बड़ा नहीं रह जाता, सब एक दूसरे से खुशी से मिलते हैं। ऐसे ही जब कोई कार्यकर्ताओं से जुड़ा कार्यक्रम होता है तो मैं भी आनंद से भर जाता हूं। मैंने अपनी लाइफ का एक बड़ा हिस्सा आप सबकी तरह एक कार्यकर्ता के रूप में काम किया है और इसलिए मुझे आज बहुत अच्छा लग रहा है, आप सबसे बात करने का अवसर मिला है। அனைவருக்கும் வணக்கம். இந்த வணக்கம் நம்ம கட்சியோட ஒரு தொண்டர் இன்னொரு தொண்டருக்கு சொல்லக்கூடிய ஒரு வணக்கம். எப்ப ஒரு காரியகர்த்தா இன்னொரு காரியகர்த்தாக்கு ஒரு வணக்கம் சொல்றாங்களோ அங்க ஒரு ஏற்றத்தாழ்வு உயர்வு தாழ்வு இல்லாம ஒரு சமத்துவமான ஒரு உணர்வு வருகிறது. இதுதான் நம்ம கட்சியோட மிகப்பெரிய பலம். ஒரு உதாரணத்துக்கு சொல்ல வேண்டும் என்றால், ஒரு மனிதன் எத்தனை பெரிய மனுஷனாக இருந்தாலும், வாழ்க்கையின் எத்தனை பெரிய உயரத்தில் இருந்தாலும், தன்னுடைய பள்ளி தோழரை அவன் போய் சந்திக்கும் போது நான் ஒரு பெரிய மனுஷன் அப்படின்னு நினைச்சிட்டு போவான். எப்படி ஒரு அன்போட நட்போட அங்க ஆற தழுவி கை கொடுக்குவாங்களோ அந்த மாதிரி உங்ககிட்ட எல்லாம் பேசும்போது நான் ரொம்ப மகிழ்ச்சியில சந்தோஷத்துல இருக்கேன். இதற்கு முக்கியமான காரணம் என்னன்னா, என் வாழ்க்கையோட பெரும் பகுதிய நான் உங்களை போன்ற ஒரு சாதாரண காரியகர்த்தாவாகத்தான் கழித்தேன். அதனால எனக்கு உங்ககிட்ட பேசும்போது ரொம்ப கூடுதலான ஒரு மகிழ்ச்சி. साथियों, तमिलनाडु बीजेपी के आप सभी साथी लंबे समय से शानदार और जानदार काम कर रहे हैं। येनादु बूथ वली में याना बूथ, यानी मेरा बूथ सबसे मजबूत का ये प्रोग्राम हम एक दूसरे से कनेक्ट करने का, एक दूसरे से सीखने का कार्यक्रम है। நண்பர்களே, நீங்க எல்லாம் தமிழ்நாட்டுல மிக சிறப்பாக உழைத்துக் கொண்டிருக்கிறீர்கள். மிகுந்த நீண்ட காலமாக உழைத்துக் கொண்டிருக்கிறீர்கள். உங்களுடைய இந்த உழைப்பு கட்சியை மிக ஆழமான நீளமான வளர்ச்சி பாதையில எடுத்துட்டு போகுது. என்னுடைய பூத் வலிமையான பூத், மேரா பூத் சப்சே மஜ்பூத் என்ற நம்முடைய முழக்கத்திற்கு உங்க ஒவ்வொருத்தரோட உழைப்பு தான் காரணம். நீங்க இந்த கூட்டத்தின் மூலமா உங்ககிட்ட பேசும்போது உங்களை எல்லாம் தொடர்பு கொள்ளவும், புரிந்து கொள்ளவும், உங்க எண்ணத்தை அறிந்து கொள்ளவும், கீழ் மட்டத்துல பூத் லெவல்ல என்ன நடக்குதுங்கிறது தெரிஞ்சு கொள்ளவும் மிக பயனுள்ள சந்திப்பாக நம்முடைய இந்த சந்திப்பு அமைந்திருக்கிறது.
अब कैंपेन तेजी से आगे बढ़ रहा है, कैंडिडेट तय हो चुके हैं, इश्यूज तय हो चुके हैं। तब मैंने सोचा कि अपने कार्यकर्ता साथियों के साथ फोन पर थोड़ी चर्चा कर लूं। और ये भी मैं बताना चाहता हूं, पिछले दिनों तमिलनाडु में मुझे जो कार्यक्रम में आने का अवसर मिला और जनता जनार्दन के जो आशीर्वाद हमें प्राप्त हो रहे थे, वो अभिभूत करने वाले थे। और मैं उसमें देखता था कि आप कार्यकर्ताओं का इतना परिश्रम था उसमें, आप लोगों ने इतनी मेहनत की थी, ये मुझे साफ साफ नजर आता था। तो मुझे बड़ा गर्व होता था कि मैं कितना भाग्यवान हूं कि मेरे पास ऐसे लाखों कार्यकर्ताओं की फौज है। ये अपने आप में मेरे लिए बड़े गर्व की बात है। तो चलिए कार्यकर्ताओं से ही बातचीत शुरू करते हैं। पहले कौन जुड़ रहा है मेरे साथ? மிக வேகமாக எல்லாரும் வேலை பார்த்துட்டு இருக்கீங்க. எல்லா கேண்டிடேட்டும் தயாராயிட்டாங்க. தேர்தலுக்கான பல விஷயங்கள் இப்ப தயாரா இருக்கு. வாக்குறுதிகள், உழைப்பு எல்லாமே நடந்துட்டு இருக்கு. இந்த தேர்தலுடைய வேகமான சூழலை நினைக்கும் போதுதான் நான் நினைச்சேன், உங்களை எல்லாம் சந்திச்சு பேசணும் அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணம் எனக்கு வந்துச்சு. நான் இப்ப சமீபத்துல தமிழ்நாட்டுக்கு போயிருந்தேன். அங்க மக்கள் எனக்கு தந்த அன்பையும் வரவேற்பையும் பார்க்கும்போது எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப மகிழ்ச்சியா இருந்தது. இத்தனை ஆர்வமாக தானாக முன் வந்து மக்கள் நமக்கு வந்து இப்படி ஒரு அன்பு செலுத்துறாங்களே அப்படின்னு நான் ரொம்ப வியந்து போனேன். உங்க ஒவ்வொரு காரியகர்த்தாவோட உழைப்பையும் நான் அதுல ரொம்ப தெளிவாக பார்த்து தெரிஞ்சுக்கிட்டேன். நான் என்ன பாக்கியம் செஞ்சிருக்கேன், எதனால இப்படி மக்கள்லாம் என் மேல அன்பை கொட்டுறாங்களேன்னு நான் உண்மையிலேயே ரொம்ப பெருமைப்பட்டேன், ரொம்ப மகிழ்ச்சி அடைஞ்சேன். அதனால இந்த சந்திப்பு எனக்கு ரொம்ப மகிழ்ச்சியை தருது. சரி, இப்ப பாப்போமா யார் யாரெல்லாம் என்ன சந்திச்சு பேச போறாங்கன்னு. முதல்ல யார் என்கிட்ட பேச போறீங்க? வணக்கம் ஜி. वणकम वणकम, कैसे हैं आप? பேசுறேன் ஜி. और मैं हिंदी में बोलूंगा, लेकिन मेरे साथी तमिल में बोलेंगे और आप आसानी से तमिल में मुझे बता सकती हो। வணக்கம். நான் வந்து உங்ககிட்ட பேச போறேன். நான் பேசுறது ஹிந்தியா இருந்தாலும் என் கூட இருக்கிற நண்பர் உங்களுக்கு வந்து தமிழ்ல அதை எடுத்து சொல்வார். அதை கேட்டுட்டு நீங்க பொறுமையா தமிழ்லயே சொல்லுங்க, அவர் எனக்கு அதை ஹிந்தியில சொல்லுவார். அதனால ஒருத்தரா என்கிட்ட பேசுங்க. कैसी हैं आप? बूथ पर कैसी तैयारी चल रही है? எப்படி இருக்கீங்கம்மா? உங்க பூத் நிலவரம் எப்படி இருக்கு? வணக்கம் ஜி. எங்க பூத் நல்லா वणकम वणकम, 125வது எங்க பூத்ல 150 நல்லா பண்ணிட்டு இருக்கோம். வாரத்துல நாங்க நல்லா போயிட்டு இருக்கோம். வணக்கம் ஜி. நாங்க 125வது பூத்ல இருந்து பேசுறோம், திருவாரூர்ல இருந்து. जी नमस्कार, हम लोग 125वां बूथ से बोल रहे हैं, तिरुवारूर से। हमारे बूथ में काफी अच्छा काम हो रहा है। हर एक हफ्ते हम लोग ट्यूसडे को हम लोग मीट कर रहे हैं। 420 फैमिली है, हम लोग मिल रहे हैं, हम लोग मिल के बूथ पे काम कर रहे हैं। अच्छा जी, आप 125 बूथ में काम तो कर रही हैं
और अपने परिवार भी ढूंढ के निकाले। बड़ा माइक्रो लेवल के आपने काम किया, ऐसा मुझे लगता है। अब जो हम देश में वुमेन लेड डेवलपमेंट, उसके हमारे विजन पर काम कर रहे हैं, और उस एक बड़ा महत्वपूर्ण काम है। हमारी सरकार की ऐसी कौन सी स्कीम है जिन्हें तमिलनाडु की महिलाओं तक पहुंची हैं, महिलाएं उसकी चर्चा करती हैं, महिलाएं उसको पसंद करती हैं? ரொம்ப மகிழ்ச்சிங்கம்மா. நீங்க ரொம்ப கீழ் லெவல்ல இறங்கி எல்லா மக்களை சந்திச்சு அடிப்படையில வேலை செய்யறத நினைச்சு எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு. நீங்க எனக்கு ஒரு முக்கியமான கருத்து சொல்லணும். நம்ம அரசு பெண்களை முன்னிறுத்தி பெண்கள் முன்னேற்றத்துக்காக பெண்கள் நல திட்டங்கள் பலவற்றை செய்து கொண்டிருக்கிறோம். எனக்கு சொல்லுங்க, உங்க பூத்துல பெண்கள் வரவேற்கக்கூடிய திட்டம் எது? பெண்கள் தங்களுக்கு நன்மை பயக்கூடிய திட்டங்கள் எதுன்னு, எந்த திட்டத்தை ரொம்ப ஆர்வமாக பின்பற்றுகிறார்கள் அப்படிங்கிற விவரத்தை எனக்கு சொல்லுங்க. ஸ்கில் இந்தியா திட்டம் ரொம்ப அதுல குடிநீர் இணைப்பு, கேஸ் இணைப்பு, வீட்டுக்கு வந்து இலவச கட்டி கொடுக்குறாங்க. அது ரொம்ப இதா இருக்கு. ஃப்ரீ டாய்லெட் கட்டி கொடுத்துருக்காங்க. அது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கு. ஏன்னா இந்த சூழ்நிலை எங்களுக்கு ரொம்ப அது ரொம்ப வசதியா இருக்கு எங்களுக்கு. நாங்க வந்து விவசாயம் பண்றது எல்லாமே எங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கு. जी, हम लोग फार्मर्स हैं, हम लोग खेती में काम करते हैं, अनपढ़ लोग हैं. हमको अपना स्कीम में जो घर में पानी पीने का पानी मिला है, वो बहुत बड़ी मदद हमको मिल रहा है. हम लोग काम करने के लिए समय मिल रहा है. वैसे ही हमको जो उज्ज्वला स्कीम में गैस सिलेंडर मिला है, वो हमारा काफी समय को बचत कर रही है, इसलिए हम लोग कर रहे हैं. इसलिए हमको टॉयलेट भी, जो लेडीज के लिए काफी बड़ी तकलीफ थी हमारे गांव में, घर घर में जो टॉयलेट बनी है, वो हमको काफी कॉन्फिडेंस दिया है. और हमको जो जो स्किल डेवलपमेंट जो हुआ है, ये सब बहुत अच्छी स्कीम है. महिलाओं इसको पसंद करते हैं. राधिका जी, आपने बहुत बढ़िया तरीके से बताया. आप जब बोल रही है तो आपके अगल बगल में काफी आवाज आ रहा है. तो कितने लोग होंगे वहां? आपके साथ कितने लोग बैठे होंगे? ரஷ்யம்மா, நீங்க பேசும்போது பக்கத்துல எல்லாம் நிறைய பேர் இருக்க மாதிரி தெரியுது. உங்க பூத்துல எத்தனை பேர் இப்ப நம்ம பேசுறத பாத்துட்டு இருக்காங்க? அங்க ஏதாவது நம்ம பேசுறத பாக்குறதுக்கு வசதி செஞ்சிருக்கீங்களா? பக்கத்துல எத்தனை பேர் இருக்காங்க? 30 பேருக்கு मोटा-मोटी 30 लोग बैठे हैं उनके बूथ में. अच्छा, हमारी जो थर्ड टर्म होने वाली है, उसमें क्या अचीवमेंट होना चाहिए? इसके लिए आप लोगों से पूछ रहे हैं क्या कि भारतीय जनता पार्टी जो संकल्प पत्र बनाएगी, उसमें उनके क्या सुझाव है? गांव के लोगों के, किसानों के, महिलाओं के, गरीबों के? அம்மா, நீங்க சொன்ன கருத்து ரொம்ப சிறப்பு. நான் தெரிஞ்சுக்க விரும்புற மிக முக்கியமான விஷயம் உங்ககிட்ட இருந்து என்னன்னா, உங்களுடைய பூத்துல 3ஆம் முறை நம்மளுடைய அரசு அமையும் போது என்ன விதமான சாதனைகளை, திட்டங்களை நாம் செய்ய வேண்டும்னு ஏதாவது யோசிச்சிருக்கீங்களா? உங்க பூத்துல வாழ்ற மக்கள் நம்ம தேர்தல் அறிக்கையில தெரிவிக்கிறபடி அதற்கான யோசனைகளை மக்கள் கிட்ட போய் கேட்டிருக்கீங்களா? மக்கள்கிட்ட கேட்ட அந்த மாதிரி யோசனைகள் எதுவும் இருந்தா சொல்லுங்க. இருக்குங்க ஜி. ஏரியாவே விவசாயம் தான். நாகப்பட்டினத்தினால எங்களுக்கு வந்து புரியணும். விவசாயம் பண்றதுனால எங்களுக்கு நெல்குடன் வேணும். ஏன்னா மழை பெய்யும் போதெல்லாம் அறுத்து மழையிலே நனைஞ்சு முடிஞ்சிருக்கு. அது வந்து குடம் இல்லை. கொஞ்சம் ஏற்பாடு பண்ணி கொடுங்க. जी, ये कह रही है हम लोग
गांव अपना खेती में काम करते हैं, इसलिए हमको पानी का बहुत बड़ी जरूरत है। इसलिए तमिलनाडु में जितना भी नदियों हैं उसको पानी वाला नदियों से जुड़ाव करना चाहिए। उसके बाद हमको इरिगेशन के लिए पानी मिलेगा, ये पहला सजेशन बोलती है। दूसरा क्या बोलती है, हार्वेस्ट करने के बाद हम लोग जो ग्रेन्स को खुले जगह में रख रहे हैं, बारिश में धूप में खराब हो जाता है, इसलिए हमको गुडौन चाहिए वो धान्य को रखने के लिए। ये दूसरी उनकी रिक्वेस्ट है। ये दोनों सजेशन उनके गांव में उनको मिला है। मुझे बहुत अच्छा लगा कि मेरा बूथ लेवल के एक कार्यकर्ता बहन कितना लंबा सोच सकती है और कितनी महत्वपूर्ण बात करती है। आप वाटर ग्रिड की बात कर रही हो, रिवर ग्रिड की बात कर रही हो, और आप गोडाउन बनाने के, और आपको पता होगा, सबको बता दीजिए, अभी हमने 2 लाख गोडाउन बनाने का काम शुरू कर दिया है ताकि किसानों को गांव में अपनी फसल बर्बाद होने से बचा सके। चलिए सीधे लिए चलते हैं आपको अमरोहा, जहां प्रबुद्ध जन सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम योगी ने शिरकत की। क्या कुछ कहा सीएम योगी ने, आइए आपको सुनाते हैं। बहनों और भाइयों, 2024 का लोकसभा का चुनाव घोषित हो चुका है। पहले चरण के मतदान संपन्न हो चुके हैं। दूसरे चरण के मतदान के लिए नामांकन की प्रक्रिया प्रारंभ हुई है। पहले चरण के जैसे ही नामांकन की प्रक्रिया पूरी हुई, तब मतदान की तैयारी हो रही है, तो दूसरे चरण के लिए नामांकन की प्रक्रिया प्रारंभ हुई है। उन स्थितियों में कि चुनाव के दिन मतदान का प्रतिशत अच्छा रहे, लोकतंत्र के प्रति हम जन सामान्य को जागरूक कर सके और अपने लोकतांत्रिक अधिकार का सही इस्तेमाल कर सके, इसके लिए मैं अमरोहा जनपद के आप सभी प्रबुद्ध जनों के सामने आया हूं आपका आह्वान करने के लिए। यह आह्वान उसी प्रकार से करने के लिए मैं आया हूं जैसे कोई भी सांस्कृतिक आयोजन हो, कोई भी मांगलिक कार्यक्रम हो, अमरोहा के ढोलक के बगैर वह कार्यक्रम तो अधूरा ही माना जाएगा। ऐसे ही लोकतांत्रिक प्रक्रिया हो या समाज का कोई भी अन्य कार्यक्रम, प्रबुद्ध जन अगर उस व्यवस्था का हिस्सा नहीं है तो फिर वह अपने आप को अधूरा मानेगा, क्योंकि यह प्रभुत्व वर्ग समाज का नेतृत्व वर्ग है। जो मंच पर बैठे हैं यही नेतृत्व नहीं दे रहे हैं, इनका राजनीतिक नेतृत्व है। लेकिन समाज के अलग अलग तबके से, कोई अधिवक्ता है, कोई शिक्षक है, कोई चिकित्सक है, कोई प्रगतिशील किसान है, कोई चैंबर ऑफ इंडस्ट्री से जुड़ा होगा, कोई पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन से जुड़ा होगा, कोई सीए एसोसिएशन से जुड़ा होगा, कोई व्यापार मंडल के साथ जुड़ा होगा। अलग अलग समूहों का नेतृत्व कर रहे हैं और हर समूह के पास अपना एक अच्छा खासा वोट बैंक है। उस पूरे वोट बैंक को मानसिक रूप से आप लोकतंत्र के प्रति तैयार करते हैं और उसके लिए अपने आप को तैयार करने के क्रम में आज हम सब यहां पर एकत्र हुए हैं। बहनों और भाइयों, 2019 के भी लोकसभा चुनाव के दौरान हम लोग आए थे। देखिए, एक वोट कैसे आपके लिए पहचान का संकट खड़ा कर सकता है और एक वोट कैसे देश की तकदीर और तस्वीर को बदल कर रख सकता है, यह आपके सामने है। 2014 के पहले का भारत और 2014 के बाद का भारत आप देखिए। 2014 के पहले का भारत, देश के अंदर परस्पर अविश्वास का वातावरण था, अराजकता थी, अव्यवस्था थी, भ्रष्टाचार था, कदाचार था और देश की सीमाएं असुरक्षित थी। नक्सलवाद, उग्रवाद, अलगाववाद चरम पर था। तो दुनिया के अंदर भारत का सम्मान भी कम हुआ था। 2014 के बाद का भारत
दुनिया के अंदर भारत का सम्मान बढ़ा है, देश की सीमाएं सुरक्षित हुई हैं, आतंकवाद नक्सलवाद का समाप्त हुआ है, देश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर वर्ल्ड क्लास बना है, हाईवे, रेलवे। 2014 के पहले अमरोहा से दिल्ली की दूरी तय करने में 5 से 6 घंटे लगते थे। आज कंवर सिंह तंवर या आप में से कोई भी व्यक्ति 2 घंटे में अमरोहा से दिल्ली की दूरी तय कर सकता है। ये इंफ्रास्ट्रक्चर में बदलाव आया है। बहनों और भाइयों, हाईवे हो, रेलवे हो, एयर कनेक्टिविटी हो, यहां पे मुरादाबाद का एयरपोर्ट हम चालू कर चुके हैं। आईआईटी, आईआईएम, एम्स, ट्रिपल आईटी, वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटीज आज ये देश के अंदर बने हैं पिछले 10 वर्ष के अंदर। आप याद करिए 2014 में आपने कंवर सिंह तंवर को सांसद बनाया तो उन्होंने अमरोहा से दिल्ली की कनेक्टिविटी 4 लेन के साथ जोड़ दी है, आपकी दूरी को कम कर दिया दिल्ली से। और 2019 में चूंकि तो कितनी छिछेलेदार हुई थी अमरोहा के लोगों की जब यहां का सांसद भारत माता की जय जयकार करने में संकोच कर रहा था। बहनों और भाइयों, यही होता है वोट बैंक। एक वोट की कीमत क्या होती है? एक वोट कर्फ्यू भी लगा देता है और एक वोट कांवड़ यात्रा भी निकाल देता है। सही दिशा में जाएगा तो कांवड़ यात्रा निकलती है और गलत हाथों में जाता है तो कर्फ्यू लगा देता है। एक वोट गलत हाथों में जाता है तो अराजकता फैलाती है और अगर वही वोट सही दिशा में जाता है, सही पार्टी के पास जाता है तो आस्था का सम्मान करा देता है। ऐसे ही जैसे 500 वर्षों का इंतजार अयोध्या धाम में समाप्त हुआ है और रामलला का विराजमान हुआ है। मुझे बताइए, क्या ये काम लोकदल के लोग, सपा के लोग, लोकदल आज हमारे साथ है, क्या सपा के लोग, बसपा के लोग, कांग्रेस के लोग ये लोग कर पाते? लेकिन आज भाजपा लोकदल का गठबंधन आपके पास आया है और यही कहने के लिए आया है। कल अमरोहा में लोकदल ने भी एक सभा की थी, चौधरी जयंत चौधरी जी आए। कितना बड़ा अवसर हमारे सामने है जब किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह जी को भारत सरकार ने भारत रत्न से सम्मानित किया। बहनों और भाइयों, ये सम्मान केवल चौधरी साहब का नहीं है, हम सब उत्तर प्रदेश वासियों का है, हर अन्नदाता किसान का है। क्योंकि देश के अन्नदाता किसान की आवाज को देश की संसद और देश की सरकार के पास आजादी के बाद पहली बार किसी ने उठाया था तो नाम था चौधरी चरण सिंह जी का। उन्होंने उस समय कहा था, भारत के विकास का रास्ता देश के खेत और खलिहानों से होकर के जाता है। अगर अन्नदाता किसान बदहाल होगा तो देश विकास नहीं कर सकता। और बहनों भाइयों, चौधरी साहब के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए ही प्रधानमंत्री मोदी जी ने चौधरी साहब को भारत रत्न से सम्मानित किया और चौधरी साहब के सम्मान के साथ हम सब उत्तर प्रदेश वासियों का सम्मान बढ़ गया। इसलिए मैं उत्तर प्रदेश वासियों की ओर से प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने चौधरी साहब को भारत रत्न देकर के किसानों का और अन्नदाता किसानों के साथ साथ प्रदेशवासियों का सम्मान बढ़ाया है, क्योंकि चौधरी साहब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी थे। यानी एक वोट की कीमत क्या होती है ये आप इसी से समझ सकते हैं। एक वोट अराजकता भी फैला सकता है, गलत हाथों में जाएगा और सही हाथों में जाएगा तो विरासत का सम्मान करते हुए देश को उसकी आस्था का सम्मान भी दिला सकता है। अयोध्या में रामलला का दर्शन करने का अवसर हम सबको प्राप्त हुआ है।
फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।